Good afternoon. Am I audible? Shrikant, am I audible? Yes, sir, audible. Okay. More persons to come because only two have joined. No? Let's have an introduction for the time being. Shrikant, from where are you working? Hello, sir. Where are you working, Shrikant? I am working in AIMS Raipur, sir. It's Raipur. In Yes, which sir. department? Which department? Community medicine department, sir. Community medicine. Once I have been there in AIMS Raipur for Oh, some sir. interviews. Sir, for some interviews for AIMS. Okay, okay, sir. Okay, sir. Hmm. Mamta Mathur? Mamta Mehur. Mamta Mehur, जी सर। where are you working? जी सर। Where are you सर working? सर मेट्रो हॉस्पिटल कृत विहार दिल्ली। Delhi. Okay, okay, okay. I am from also from Delhi. I am Dr. C.P. Baveja. Mm, जी I retired from Maulana Azad Medical College as professor and head department of microbiology. Okay, sir. Do you know how many persons have to join this meeting? In the last class, there are 10 to 12 person. Okay. Yeah. Then we will wait for another 5-10 minutes. Yes, sir. Yes. If no one joins, then we will start, right? We Yes, can sir. wait for 5-10 minutes. Okay. Yes, sir. Okay.
Samantha, where are you working? Sir, Metro Hospital, Prithvi Vihar. Where are you working? Sir, Metro Hospital, Prithvi Vihar, Delhi. Okay, you are also in Preet Vihar. Okay, okay. I'm Dr. C.P. Baveja, जी sir. retired from Mozanajad Medical College. Should we start? I think. Yes, sir. I think we should start. Huh? Yes, sir. Okay. And before the topic, as you know, is that interrelationship between health and environment, right? And what do you understand by this? I will just summarize what we are going to talk in this topic. Interrelationship is there between health and environment. So, idea is that if environment is not proper, then it will impact on our health. And how environment is not proper? Because environment may be having some germs may be there, viruses may be there, mm, uh, viruses may be there, then bacteria may be there, or maybe fungi may be there, any microorganism may be there. From where they come in the environment? From the patient. It may come from the patient, or the material which is being used in the hospitals, that is disposed of. If that is not properly disposed of, then it is a health hazard, because environment will not be proper. Then it may go in our body by inhalation, by touching, or besides this, if there may be some toxic materials may be there which are in the environment, chemicals may be there, disinfectants are used, so those may be there. So basic idea is that if environment is not proper, pollution may be there. So all these will impact on the health. It may lead to various diseases. It may harm your organs.
So to save your health, environment should be proper. For environment to be proper, whatever you are disposing in the environment should be either treated and should be germ free, and proper disposal will be the helpful, and you should not touch the material which is contaminated. So that is a basic summary of this, what we are going to talk about. Okay, now we start. Is it okay I should talk in Hindi, English both, or in English only? What is comfortable? Both, sir, both. Both. Okay. Introduction. In introduction, what is health care waste? Healthcare waste क्या चीज है? Healthcare waste may includes all the waste generated within healthcare facilities, research centers and laboratories related to medical procedures. इसका मतलब क्या हुआ? हेल्थ केयर वेस्ट वो है जो जनरेट हुई, पैदा हुई हेल्थ केयर फैसिलिटीज। हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्या है? हेल्थ केयर फैसिलिटीज है हॉस्पिटल्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, कोई नर्सिंग होम्स हैं, ऑपरेशन थिएटर्स हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, जहां से भी कोई भी मेडिकल प्रोसीजर हो रहा है, तो जो भी वेस्ट जनरेट होती है वो हेल्थ केयर वेस्ट है। और हेल्थ केयर वेस्ट जब पेशेंट से जनरेट हो रही है, इट मींस दैट इज इन्फेक्शियस, वो इन्फेक्शियस है। चाहे उसमें कोई भी बैक्टीरिया, जर्म ना हो, कुछ भी ना हो, तो भी हम उसे मानेंगे कि इन्फेक्शियस है, बिकॉज बैक्टीरिया, वायरस वगैरह आंखों से तो नजर आएंगे नहीं। तो हम मान के चलते हैं कि हर चीज इन्फेक्शियस है जो पेशेंट से आ रही है, जो भी प्रोसीजर से आ रही है। किसी भी प्रोसीजर आपने किया, आपने कैथीटर लगा दिया, आप पेशेंट ने यूरिन दिया, यूरिन डिस्पोज किया, इस तरह से। सो बायोमेडिकल वेस्ट क्या चीज है? ये तो हेल्थ केयर वेस्ट होगी, हेल्थ से आ रही है। बायोमेडिकल वेस्ट की एक डेफिनेशन है जो गवर्नमेंट ने दे रखी है, वो ये डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। बायोमेडिकल वेस्ट मींस एनी वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब कोई भी डायग्नोसिस में काम आ रहा है, जैसे आप लेबोरेटरी टेस्ट कर रहे हैं, कुछ डायग्नोसिस में काम आ रहा है, या ट्रीटमेंट में जैसे आपने इंजेक्शन लगाया, तो आपने सिरिंज फेंकी, वो भी ट्रीटमेंट में पार्ट है। इम्यूनाइजेशन में भी सिरिंज आएगी आपका। ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, कभी आप एनिमल्स में भी लगा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उससे भी जनरेट हो सकती है। और रिसर्च एक्टिविटीज, कोई रिसर्च एक्टिविटी हो रही है pertaining thereto or in the production of or testing of biological और health camps, कोई health camp लग रहे हैं कहीं पे, तो उससे जनरेट हो रहा है। इंक्लूडिंग द कैटेगरीज मेंशन्ड इन शेड्यूल 1, ये शेड्यूल 1 में कैटेगरीज हैं अपेंडेड टू द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल है 2016, उसमें कैटेगरीज हैं, हम बात करेंगे इसकी बाद में, एज अमेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहीं से भी किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी से कोई चीज जनरेट हो रही है तो बायोमेडिकल वेस्ट है। मेडिकल कोई फैसिलिटी से चल रही है, और बायोलॉजिकल है, बायोमेडिकल वेस्ट। सो हेल्थ केयर वेस्ट कितने तरह की है? परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट एज पार्ट ऑफ टोटल वेस्ट इन हेल्थ केयर फैसिलिटी। हेल्थ केयर वेस्ट में क्या क्या है? 85% तो होती है जनरल वेस्ट। जनरल मीन नॉन हेजार्डस, जिससे कोई नुकसान नहीं है, नॉन हेजार्डस। और 10% है इन्फेक्शियस वेस्ट, और 5% है केमिकल और रेडियो एक्टिव वेस्ट। सो ये 10% इन्फेक्शियस और 15% जो वेस्ट है, इसका हमको ध्यान रखना है कि अगर ये मान लो आपकी 85% वेस्ट में मिक्स हो जाती है तो आपको प्रॉब्लम है। मतलब आपने सारी 85% जो जनरल वेस्ट थी उसको इन्फेक्शियस बना दिया और आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए ये ध्यान देना है, सेग्रीगेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इस किसी भी बायोमेडिकल वेस्ट से बचने के लिए सेग्रीगेट करें, अलग अलग सेग्रीगेट करें, इसको अलग सेग्रीगेट करें, इन्फेक्शियस वेस्ट को, केमिकल वेस्ट को अलग करें, रेडियो एक्टिव को अलग करें, और जनरल को अलग करें। दोनों को आपने मिक्स कर दिया जनरल के साथ किसी को भी, तो पूरी जनरल वेस्ट आपकी इन्फेक्शियस हो जाएगी। ये बड़ा जरूरी है। सेग्रीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। अब लोकेशंस क्या है? लोकेशंस ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट, you don't go by this list। आप सोचिए, आप जैसे 2 मैडम हैं जो मेट्रो हॉस्पिटल में काम कर रही हैं, सोचें वहां क्या क्या होता है। मेट्रो हॉस्पिटल में ऑपरेटिंग रूम्स हैं, तो ऑपरेटिंग रूम में जो भी चीज जनरेट होगी वो बायो इन्फेक्शियस वेस्ट है।
जैसे ऑपरेशन थिएटर में कुछ भी यूज हुआ, कुछ ब्लेड यूज हुआ, जो है शार्प ब्लेड, केमिकल्स यूज हुए, लिनन यूज हुई, गॉज पीसेस यूज हुए, ये सब वेस्ट जो है हो जाएगा। ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स निकले वहां पे कुछ, वो भी सारा वेस्ट है। अब इमरजेंसी रूम्स हैं, इमरजेंसी रूम में भी वही चीजें हैं, नीडल यूज हुई, सिरिंजेस यूज हुई, ब्लड बैग यूज हो गए, यूरिन बैग यूज हो गए, इंट्रावीनस ग्लूकोज चढ़ाया आपने तो इंट्रावीनस जो ट्यूबिंग का सेट है वो हो गया। ये सब इमरजेंसी रूम में यूज हो रहा है। सब जगह वो चीजें यूज होंगी, जैसे लेबर रूम में भी वही ब्लड बैग यूज हो सकता है, ब्लड यूज हो सकता है। लेबर रूम में अलग चीज हो जाएगी कि फीटस हो सकता है, एबॉर्शन हुआ, डेड फीटस आ गया, प्लेसेंटा हो गया, उसके साथ लिनन यूज हुई, गॉज एंड पैड यूज हुआ। अब जनरल वार्ड में भी वही चीजें हैं, जनरल वार्ड में आप शार्प यूज कर सकते हैं, कोई ब्लेड यूज हुआ कट लगाने के लिए, सिरिंजेस यूज हुई, स्वाब यूज हुए, बॉडी फ्लूइड ब्लड यूज हुआ, ये सब चीजें। लेबोरेटरी में क्या होगा, लेबोरेटरी में क्योंकि सैंपल्स आ रहे हैं, सैंपल्स तो सारे आप यूज करने के बाद फेंकेंगे, वो भी वेस्ट है। फिर आप सैंपल्स अगर माइक्रोबायोलॉजी के हैं तो आप कल्चर प्लेट लगा रहे हैं ग्रोथ कल्चर करने के लिए, वो कल्चर प्लेट्स भी फेंकेंगे बाद में, वो है। आप कोई ग्लास स्लाइड पे स्मीयर बना के देख रहे हैं, वो स्मीयर वाला ग्लास स्लाइड भी आपका इन्फेक्शियस वेस्ट हो गया। स्वाब्स यूज कर रहे हैं, कोई पस स्वाब आया आपका, आपने यूज किया, वो पैथोलॉजिकल वेस्ट में टिश्यू आ गया आपके पास, वो भी सारा वेस्ट है। तो ये आ गया, नेक्स्ट आ गया बिन्स यूज टू कलेक्ट वेस्ट इफ नॉट लेबल्ड और सेग्रीगेटेड। बिन्स जो यूज होते हैं, मिक्स वेस्ट विच कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट एंड रेंडर्स द होल वेस्ट। ये मैं आपको बताया कि अगर आपने मिक्स कर दिया वेस्ट को तो पूरी इन्फेक्शियस हो जाएगी। तो बिन्स यूज होते हैं कलेक्ट करने के लिए वेस्ट, अलग अलग बिन है, इन्फेक्शियस के लिए अलग है, केमिकल के लिए अलग है, हर चीज के लिए वो बाद में बात करेंगे। हॉस्पिटल लिनन है, लॉन्ड्री है, ये भी चीजें, अगर ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स के साथ स्टेन हो गया, पेशेंट ने कोई लिनन यूज किया, चादर यूज की और उसके ऊपर ब्लड लग गया उसका, तो वो इन्फेक्शियस हो गया, बॉडी फ्लूइड लग गया उसका, तो इन्फेक्शियस हो गया। अब डेंटल में यूज होते हैं, स्वाब यूज होते हैं, इन्फेक्टेड टीथ निकाला उन्होंने, टूथ एक्सट्रैक्शन किया, वो भी वेस्ट है। ब्लड आ गया, वो भी वेस्ट है। शार्प यूज किया, जो है ब्लेड वगैरह, वो भी वेस्ट है। ये लोकेशंस होगी इन्फेक्शियस वेस्ट कहां कहां से आ सकती है। तो सोर्सेज क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट? जैसे मैंने आपको बताया था, हेल्थ केयर फैसिलिटी, कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटी है, दैट इज अ सोर्स। Healthcare facility or its environment is an ideal place for harboring infections, and hence healthcare facility is a disease transmitting source. So disease transmit हो सकती है कहाँ से? Healthcare facility. Healthcare facility क्या है? नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल्स हैं, छोटे मोटे क्लिनिक्स हैं, सब हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, लेबोरेटरीज हैं। सो रीजन क्या होता है डिजीज ट्रांसमिशन का? सो इन्फेक्शंस ट्रांसमिटेड टू द विजिटर्स, विजिटर्स जो आते हैं वहां हॉस्पिटल में पेशेंट को मिलने, उनको पेशेंट से हो सकता है, पेशेंट कफिंग कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, खांसी आ रही है, नीच आ रही है, और टच कर रहा है फिजिकल एनवायरनमेंट को। अब पेशेंट आया, वो अंदर गया तो रेलिंग को तो टच करेगा, ऊपर जाएगा सीढ़ी से, और डोर हैंडल खोलेगा, डोर हैंडल को होगा, वो सब इन्फेक्शियस हो सकते हैं। देन पेशेंट देमसेल्व्स हैव ए लोअर्ड इम्यूनिटी। पेशेंट की इम्यूनिटी क्या होती है, क्योंकि बीमार है पेशेंट तो उसकी इम्यूनिटी बड़ी कम है, तो इसलिए उसको ज्यादा चांस है इन्फेक्शंस पकड़ने के जनरल पब्लिक के मुकाबले में। एक पेशेंट वहां पे एडमिट हुआ, इम्यूनिटी कम है किसी बीमारी के लिए, दूसरे पेशेंट से भी पकड़ दिया डिजीज, क्योंकि उसका इम्यूनिटी कम है, दूसरे से ले लिया। एंड नॉट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। अगर आप जो डॉक्टर्स हैं या नर्सिस हैं या कोई और है, वो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस नहीं यूज कर रहा, तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या है कि आप जो है ग्लव्स डालिए, जब आप कुछ प्रोसीजर कर रहे हैं तो ग्लव्स डालिए। अगर ऐसा सोचते हैं कि इनहेलेशन से हो जाएगा नाक से, तो आप मास्क लगाइए, मास्क लगाइए। तो एप्रन डालिए, अगर आपको लगता है कि आप जब प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें स्प्लैश हो सकता है, एकदम ब्लड निकल के या कोई पस निकल के आपके ऊपर आ सकती है, तो एप्रन डालिए। ये सब प्रिकॉशंस, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं, ये बहुत जरूरी है जब आप लैब में काम करते हैं या हॉस्पिटल में काम करते हैं या कोई भी एनवायरनमेंट में, ऐसे हेल्थ केयर फैसिलिटी के एनवायरनमेंट में काम करते हैं।
ये है सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट इन ए हेल्थ केयर सेटिंग। हेल्थ केयर सेटिंग में क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं? हम यहाँ ऊपर से चलते हैं। हैंड्स ऑफ द हेल्थ केयर पर्सनल, जो हेल्थ केयर पर्सनल जो भी बंदे काम कर रहे हैं वहां पे, उनके हैंड्स इन्फेक्टेड हो सकते हैं, उससे हो सकता है। फिर दूसरा है कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट यूज्ड ऑन द पेशेंट। पेशेंट पे यूज हुआ इक्विपमेंट, सिरिंज यूज हुई या कोई और कैथेटर यूज हुआ, वो कंटेमिनेटेड है, तो वो पेशेंट वो वाला सोर्स है। देन पूरली क्लीन सर्फेसेस एंड रूम्स। सरफेस जो है, फर्श ठीक तरह क्लीन नहीं हुआ, रूम्स क्लीन नहीं हुए अच्छी तरह से, तो वो भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। फिर है निडल्स एंड अदर शार्प इंस्ट्रूमेंट। निडल्स, आपने सिरिंज यूज की, वो इन्फेक्शियस वेस्ट है। आपने कोई ब्लेड यूज किया कट लगाने के लिए, वो इन्फेक्शियस वेस्ट है। देन नेक्स्ट आता है वेस्ट कंटेमिनेटेड विद ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड। वेस्ट तो आपने आई जनरेट हुई, उसके साथ ब्लड और बॉडी फ्लूइड मिक्स हो गया, कोई भी वेस्ट, तो वो कोई भी वेस्ट, किसी भी तरह की वेस्ट, बड़ी क्लीन वेस्ट भी है, अगर उसके ब्लड और कोई बॉडी फ्लूइड लग गया तो वो वेस्ट इन्फेक्शियस वेस्ट हो जाती है, हैजार्डस वेस्ट हो जाती है। जैसे पेशेंट ने कंबल डाला हुआ है, अब कंबल में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंबल पे अगर ब्लड लग गया और बॉडी फ्लूइड लग गया तो वो वेस्ट हो गया, इन्फेक्शियस हो, हैजार्डस वेस्ट हो गया। देन वेस्ट कंटेमिनेटेड विद फीसिस यूरिन ऑफ पेशेंट्स विद हाईली कम्युनिकेबल डिजीज। कोई पेशेंट का फीसिस लग गया, यूरिन लग गया, वो भी वेस्ट हैजार्डस हो गया। लेबोरेटरी वेस्ट तो सारी हैजार्डस है ही है। लेबोरेटरी वेस्ट में सारे सैंपल्स जो आ रहे हैं, आप प्रोसेस करने के बाद वेस्ट के तौर पे जाएंगे। आपके जो भी स्लाइड्स यूज हो रही हैं, आपके कल्चर प्लेट्स यूज हो रही हैं, या कोई और प्रोसीजर में यूज हो रहा है कोई मटेरियल, वो सब जो भी जनरेट हो रहा है लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी से जो भी बाहर आया, वो सब वेस्ट जो है इन्फेक्शियस वेस्ट। नेक्स्ट आता है कि हेल्थ केयर रिस्क फ्रॉम इन्फेक्शियस हेल्थ केयर वेस्ट। रिस्क पे कौन लोग हैं? मोटे तौर पे अगर मैं कहूँ, रिस्क पे कौन है? जो भी बंदा कांटेक्ट में आ रहा है, वो बंदा जो है रिस्क पे है। हेल्थ केयर फैसिलिटी के कांटेक्ट में आ रहा है, कहीं भी जाओ ऐसा काम हो रहा है। एनीवन कमिंग इनटू क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द इन्फेक्शियस वेस्ट, इन्फेक्शियस वेस्ट के क्लोज आ रहा है, तो क्लोज कहाँ आएगा? हॉस्पिटल में आएगा, नर्सिंग होम में आएगा, ऑपरेशन थिएटर में आएगा। पूरा एनवायरनमेंट, हेल्थ केयर फैसिलिटी का पूरा एनवायरनमेंट इन्फेक्शियस है, तो पेशेंट के साथ आएगा। दूसरा कौन है? वन हु वर्क्स एट, प्रोवाइड्स और रिसीव्स केयर एट और विजिट्स ए हेल्थ केयर फैसिलिटी इज एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इसमें क्या क्या है? जो वहां काम कर रहे हैं, हु वर्क्स एट का मतलब है जो काम करते हैं, नर्सिस हैं, डॉक्टर हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, स्वीपर्स हैं, सब लोग जो है। और प्रोवाइड्स और रिसीव केयर, प्रोवाइड जो कौन करता है? जो केयर करता है, प्रोवाइड करता है केयर, ये सारे लोग प्रोवाइड करते हैं केयर, चाहे डॉक्टर हो चाहे नर्सिस हो। लेकिन जो वन हु वर्क्स एट में वो भी आ जाते हैं जो केयर प्रोवाइड नहीं करते, जैसे क्लरिकल स्टाफ है, दूसरा स्टाफ है, जो कैशियर है, ये सब आ जाते हैं। और रिसीव्स केयर एट, रिसीव कौन करता है केयर? पेशेंट एट रिस्क है। और जो विजिट ए हेल्थ केयर फैसिलिटी, विजिट कौन करता है? पेशेंट के रिलेटिव, वो भी रिस्क पे हैं। अब थर्ड कैटेगरी क्या है? Those living around any facility delivering healthcare services are also potentially at risk from exposure. जो आसपास रहते हैं, जो हेल्थ केयर फैसिलिटी किसी हॉस्पिटल के नजदीक वाले जो लोग हैं, कम्युनिटी है, वो रिस्क में है, क्योंकि एनवायरनमेंट उनका और जगहों से बेहतर नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से एनवायरनमेंट, पेशेंट आ रहे हैं जा रहे हैं, वो सारा उनका एनवायरनमेंट जो है थोड़ा रिस्क वाला होगा, वो लोग भी रिस्क पे। हेल्थ रिस्क फ्रॉम इन्फेक्शियस हेल्थ केयर वेस्ट। तो हेल्थ केयर स्टाफ को क्या है, कैसे होता है इन्फेक्शन? जो काम कर रहे हैं उनको हो सकता है कोई ब्लड उन्होंने निकाला, ब्लड सैंपल निकाला, उनके टच हो गया, या निडल प्रिक हो गया उनको, तो वो हो सकता है। या ब्लड उन्होंने नीचे गिरा दिया तो इन्फेक्शियस स्पिल हो गया, तो वो एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। सो फिर एरोसोल्स हो सकते हैं, एरोसोल्स पेशेंट छोड़ रहा है इन अपने सांस में, तो वो भी हेल्थ केयर स्टाफ को हो सकता है। शार्प इंजरीज, कुछ लगा रहे हैं, निडल लगा रहे हैं तो निडल की इंजरी हो गई, कोई ब्लेड से कोई कट लगा रहे हैं तो ब्लेड से हो गया, ऑपरेशन थिएटर में
आपको ब्लेड जो स्कैल्पल ब्लेड है वो आपको चुभ गया, तो ये सब चीजें रिस्क हेल्थ केयर स्टाफ का है। तो फिर रिस्क टू पेशेंट्स एंड विजिटर्स, पेशेंट्स को ये रिस्क ये है कि उसको अपनी तो वो आया ओपीडी में अपना इलाज कराने पेशेंट, और बाकी पेशेंट भी कांटेक्ट में हैं उसके, कि कितने पेशेंट बैठे हैं, वो उनका किसी का इन्फेक्शन दे दिया उसने, विजिटर्स किसी को मिलने आया उसने इन्फेक्शन दे दिया, इतने पेशेंट हैं। रिस्क टू द कम्युनिटी, कम्युनिटी में कैसे रिस्क है, जनरल पब्लिक इज एट रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन व्हेनेवर हैजार्डस हेल्थ केयर वेस्ट इज डिस्पोज्ड ऑफ इम्प्रॉपरली, जब भी आपकी हेल्थ केयर वेस्ट जो है इम्प्रॉपर डिस्पोजल है, ठीक तरह डिस्पोज नहीं हो रही, तो वो कम्युनिटी को रिस्क है ही है, क्योंकि आप फेंक रहे हैं, अगर आप बिना ट्रीट किए अपना डस्टबिन में फेंक देते हैं या उस बाहर चली जाती है, तो वो कम्युनिटी रिस्क पे है। Improperly discarded medical waste in open bins like contaminated needles, syringes, dressings, आपने जनरल पब्लिक रिस्क पे हो जाएगी अगर आप ऐसा फेंकना शुरू कर देंगी, आपने सिरिंजेस निडल आम फेंकना शुरू कर दिया कम्युनिटी में, वो रिस्क पे हो जाएंगे। अब रिस्क ऑफ वेस्ट हैंडलर, वेस्ट हैंडलर का रिस्क क्या है, जो हॉस्पिटल में जो वेस्ट हैंडलर वो लोग हैं जो वेस्ट को एक जगह से लेके दूसरी जगह छोड़ने जाते हैं, तो वो रिस्क में है, क्योंकि वो उठाते हैं बिन, डालते हैं अपनी रेड़ी में, उसमें ट्रॉली में, फिर लेके जाते हैं, वो रिस्क में। उनको भी अपने वेस्ट हैंडलर्स को इससे बचने के लिए स्टैंडर्ड प्रिकॉशन लेना होता है, उनको ग्लव्स डालने होते हैं, अच्छे बूट डालने होते हैं, एप्रन डालना होता है, मास्क लगाना होता है, कैप लगानी होती है, ये सारे दे आर एट इमीडिएट रिस्क, देखा ना इमीडिएट रिस्क, क्यों, इंजरीज हो सकती हैं उनको शार्प से एंड एक्सपोजर टू टॉक्सिक एंड इन्फेक्शियस वेस्ट, और एडिशनल हैजार्ड अकर ड्यू टू ऑफ द वेस्ट साइट्स एंड ड्यू टू मैनुअल सॉर्टिंग। कई बार क्या होता है, वेस्ट फेंकी उन्होंने और लोग आ जाते हैं उसमें निकालना शुरू कर देते हैं कि प्लास्टिक है, सिरिंजेस निकाल लो, तो उनको वो उससे भी हो सकता है कि प्लास्टिक है, बेचेंगे इसको ले जाके, तो वो उनको हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इन्फेक्शन का, अगर वेस्ट तो आ गई, एनवायरनमेंट में आ गई, कहीं आ गई, आप हॉस्पिटल में गए, वेस्ट हुआ, आपको किस किस मोड से हो सकता है, एक तो आपको इन्फेक्टेड एयर से हो सकता है, पेशेंट छोड़ रहा है अपनी इन आपका एनवायरनमेंट में छोड़े जा रहा है, सांस से छोड़ रहा है, एयर सारी इन्फेक्टेड हो गई, आप उस एयर को ले रहे हैं, आपका हो गया। दूसरा, आपने हाथ मिलाया कोई इन्फेक्टेड बंदे से, आपका डायरेक्ट कांटेक्ट से हो गया। तीसरा, आपने इन्फेक्टेड ब्लड गिरा हुआ था, आपका टच हो गया, उससे हो गया। फिर फोमाइट्स, आपने डोर का हैंडल खोला, उसके ऊपर थे, तो आपको मिल गया। वाटर कंटेमिनेशन, वाटर प्रॉपर नहीं था, वाटर में वेस्ट था, तो आपने वो वाटर दे दिया, पी दिया, यूज कर दिया, तो उससे आपको हो गया। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इन्फेक्शन कैसे होता है। फिर आता है इम्पैक्ट ऑफ इन्फेक्शियस हेल्थ केयर वेस्ट ऑन पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ पे शार्प इंजरी से भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये पब्लिक हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट करता है, ये एक स्टडी है 2000 की, जिसमें कैसे लोगों को इन्फेक्शन हो गया, शार्प इंजरीज टू हेल्थ केयर वर्कर्स वर एस्टिमेशन हुआ कि हेपेटाइटिस बी एक वायरस का इन्फेक्शन है, 66,000 लोगों को हो गया, हेपेटाइटिस सी 16,000 को हो गया। ये निडल से होता है, आपको निडल चुभ गई, निडल लग गई काम करते हुए, और हेपेटाइटिस बी था उसमें, तो आपकी बॉडी में चला गया। एचआईवी भी निडल से हो सकता है, 2000 से 5000 लोगों को हुआ हेल्थ केयर वर्कर्स को। So for healthcare workers, the fraction of these infections that are due to percutaneous occupational exposure, percutaneous हो जाता है ये, ठीक है ना। ये तीनों percutaneous होते हैं, निडल से हो सकते हैं, HBV, HCV, HIV, और मोड भी हैं, लेकिन वो इन्फेक्शियस वेस्ट से नहीं होंगे। और मोड तो इनके हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो जाता है, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंटेमिनेटेड हो। फिर सेक्सुअल मोड से भी होते हैं ये तीनों, लेकिन वो उसका कोई इससे इन्फेक्शियस वेस्ट से कोई लेना देना नहीं। देन इम्पैक्ट ऑफ इन्फेक्शियस हेल्थ केयर वेस्ट ऑन पब्लिक हेल्थ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। कैसे होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कि आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे होगा, जैसे अब यहाँ आप देखिए, ये जॉर्ज है,
जॉर्ज एंटीबायोटिक दिया जॉर्ज ने, उसकी गट में रेसिस्टेंस बैक्टीरिया पैदा हो गई क्योंकि एंटीबायोटिक से काम नहीं कर रहा था, रेसिस्टेंट बैक्टीरिया पैदा हो गई। अब जॉर्ज ने क्या किया, हॉस्पिटल या नर्सिंग होम और अदर केयर फैसिलिटी में है वो, अगर वो हेल्थ केयर फैसिलिटी में है मान लो बंदा जॉर्ज, तो वो रेसिस्टेंट बैक्टीरिया स्प्रेड टू अदर पेशेंट, जो उसके आसपास पेशेंट हैं उनको स्प्रेड करेगा, तो और पेशेंट्स को स्प्रेड करेगा। अब यहाँ है directly to other patients on unclean hands of healthcare providers, indirectly और directly जो है वो हैंड से भी कर सकता है। अब ये पेशेंट जो थे जिनको उसने स्प्रेड किया वो घर में गए वापस, तो कम्युनिटी में कर दिया जिन जिन के कांटेक्ट में आए। एक तो ये तरीका है, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, ये एंटीबायोटिक्स जो यहाँ से शुरू हुए थे हम, ये तो ह्यूमन बीइंग को हुआ, ये एंटीबायोटिक आपने एनिमल्स को दे दिए, एनिमल गेट एंटीबायोटिक्स एंड डेवलप रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इन देयर गट्स। जैसे जॉर्ज में गट में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पैदा हुए, ऐसे ही ये हेन में हो गए, एनिमल में हो गए, ये डिफरेंट एनिमल में। अब उसका मीट खा लिया, ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन रिमेन ऑन मीट, मीट पे रहेंगे एनिमल के, और आपने हैंडल किया, बंदे ने, उसको हो गया हैंडलिंग में, या स्प्रेड टू ह्यूमंस, ह्यूमंस को स्प्रेड हो गया, ये फिर कम्युनिटी में ह्यूमंस को स्प्रेड हो गया तो वो कम्युनिटी में आ गया। और तीसरा तरीका क्या है, ये जो एनिमल्स हैं ये फर्टिलाइजर और वाटर कंटेनिंग एनिमल फीसिस, एनिमल का फीसिस जो है कंटेन करता है, बैक्टीरिया है उसमें ड्रग रेजिस्टेंस, तो वो जब फीसिस करता है वो उस पे फूड क्रॉप्स पे कर देता है, फूड के कुछ प्लांट्स हैं उस पे कर दिया, और वेजिटेबल पे, तो वो उस पे कर दिया तो वो सारा ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया वेजिटेबल्स पे आ गए। अब एनिमल फीसिस में था और वो क्रॉप्स पे आ गया, क्रॉप्स पे, वेजिटेबल्स पे, वो ईट किया तो फिर आपका ह्यूमन गट में आ गया वो बैक्टीरिया, फिर वो कम्युनिटी में चलना शुरू हो गया। तो ये स्प्रेड ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, कैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड होता है। देन इम्पैक्ट ऑफ इन्फेक्शियस हेल्थ केयर वेस्ट ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, हेल्थ और एनवायरनमेंट में क्या है। अब पहले तो ये है कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट है, शार्प की कैटेगरी है एक, कल्चर, स्टॉक्स, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, ये अलग अलग तरह की वेस्ट है, पैथोलॉजिकल वेस्ट। फिर लोकेशन ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट जो मैंने आपको पहले बताई है, हॉस्पिटल, लिनन, लॉन्ड्री, डेंटल सेटिंग, ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी रूम, लेबर रूम, जनरल वार्ड, ये सब। सोर्स ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ, हैंड्स ऑफ हेल्थ केयर पर्सनल, contaminated equipment, dirty rooms, shops, laboratory waste, waste contaminated with feces and or urine, ये सब बता चुके हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटी हार्बर इन्फेक्शंस, so patient carry infections, patients have lower immunity, ये भी बात हो चुकी है। मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर इन्फेक्शियस वेस्ट, ये शार्प्स, कल्चर, स्टॉक, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, पैथोलॉजिकल एंड प्लेसेंटल वेस्ट, ये सब का मैनेजमेंट होना चाहिए। फिर इम्पैक्ट ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट, इन्फेक्शियस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, जो बात हो चुकी है। पीपल एट रिस्क कौन है, हेल्थ केयर स्टाफ है, पेशेंट्स है, कम्युनिटी है, ये सब बात हम कर चुके हैं। प्रिवेंशन, पॉलिसी प्रोग्राम, डिजाइनिंग, प्लानिंग एंड ट्रेनिंग, ये ऐसा है, प्रिवेंशन के लिए आप प्रिवेंट करें उसको ताकि मैनेजमेंट करें, और फिर पॉलिसी प्रोग्राम्स बनाएं ताकि ये प्रिवेंशन चलता रहे, ठीक है ना। हैजार्डस नेचर ऑफ केमिकल वेस्ट, अब आते हैं केमिकल वेस्ट पे, ये तो हो गया इन्फेक्शियस वेस्ट। केमिकल वेस्ट क्या है, केमिकल वेस्ट कंसिस्ट ऑफ डिस्कार्डेड सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस केमिकल फ्रॉम वेरियस डायग्नोस्टिक एंड एक्सपेरिमेंटल वर्क, फ्रॉम क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग प्रोसीजर्स, डिसइंफेक्शन में भी केमिकल्स यूज होते हैं। तो ये क्या है, डिस्कार्डेड सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस केमिकल्स हो सकते हैं जो डायग्नोसिस में यूज हो या एक्सपेरिमेंटल वर्क में यूज हो। तो WHO ने क्या किया, WHO ने अकॉर्डिंग टू WHO केमिकल वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम हेल्थ केयर सेक्टर इज कंसीडर्ड टू बी हैजार्डस, ये हैजार्डस है इफ इट हैज एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, अगर इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो कहता है WHO की ये केमिकल वेस्ट हैजार्डस है। टॉक्सिक, टॉक्सिक हो जैसे फ्यूम्स हैं, डस्ट है, वेपर फ्रॉम टॉक्सिक मटेरियल कैन बी हार्मफुल एज दे कैन बी इनहेल्ड, टॉक्सिक होगा
तो इनहेल करेंगे तो परेशानी करेगा, एंड पास क्विकली फ्रॉम लंग्स इनटू द लंग्स में गया, इनहेल करके फिर ब्लड में आ गया। कोरोसिव जो है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली बेस हैं, ये हाईली कोरोसिव हैं। अगर आपके हाथ में लग गया, स्प्लैश हो गया स्किन पे, आई पे, तो एक बर्न कर देगा उसको, कोरोसिव है। या एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव है, ये आग लग गई उसको, लिक्विड को, तो ये एक्सप्लोसिव है, तो वो भी हैजार्डस है, तो आग ही लग गया एकदम फ्लेमेबल, इस ये भी आग लग गया, उसने आग पकड़ दिया, फट से बर्न हो गया, जो है एक्सप्लोसिव में बम की तरह फट गया, जो है। केमिकल रिएक्टिव, these materials should be used with extreme caution and stored in special container. Chemically reactive mean कोई रिएक्ट हो रहा है किसी मेटल वेटल के साथ, तो वो मटेरियल जो है कॉशन से स्टोर्ड स्पेशल कंटेनर में होना चाहिए, कि रिएक्शन नहीं होना चाहिए उसका। देन ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम GHS ऑफ क्लासिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ केमिकल्स को लेबल कैसे करते हैं? GHS में डिफाइन है केमिकल प्रोडक्ट्स को लेबलिंग करने का तरीका, और उसके सेफ्टी इंफॉर्मेशन लेबल्स पे लिख देते हैं, सेफ्टी इंफॉर्मेशन, ताकि पढ़ के उसको पता चल जाए कि ये केमिकल नुकसान पहुंचा सकता है, इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं, क्या सेफ्टी इंफॉर्मेशन है। मेजर एलिमेंट्स ऑफ GSR आर क्लासिफिकेशन ऑफ द हैजार्ड ऑफ केमिकल अकॉर्डिंग टू GSS रूल से आप क्लासिफाई किया उन्होंने। एंड जैसे लेबल पे क्या करेगा, विद GHS सर्टेन इंफॉर्मेशन विल अपीयर ऑन द लेबल। फॉर एग्जांपल केमिकल आइडेंटिटी, भाई है कौन सा केमिकल, स्टैंडर्डाइज्ड हैजार्ड स्टेटमेंट, सिंबल अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द केमिकल, सिंबल लगा देते हैं, अभी दूर से पता चल जाए उस सिंबल से कि ये केमिकल जो है इस तरह का है, ये सिंबल्स हैं। जैसे पहला कोरोजन का है, दूसरा एक्सप्लोडिंग लाइक बम, फ्लेम है, स्कल्स एंड कोरोसिव है, इन्वायरमेंट है, हेल्थ हैजार्ड है, तो ये सारे सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स उस लेवल पे दिए होंगे। देन केमिकल वेस्ट फ्रॉम हेल्थ केयर एक्टिविटीज, कौन कौन से केमिकल वेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी में पैदा होते हैं, मतलब जनरेट होते हैं? एसिड है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, बेसिस हैं। एसिड में जैसे एसिटिक एसिड, बोरिक एसिड, क्रोमिक एसिड, एल्कोहल में इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, एल्डिहाइड में क्लोरहेक्सिडिन, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड, बेसिस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हेलोजेनेटेड डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं कुछ, जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है, ब्लीच, ये सबसे ज्यादा यूज होता है हॉस्पिटल्स में, स्पेशली HIV को और HBV को, हेपेटाइटिस B वायरस को खत्म करने के लिए बहुत यूज होता है एज ए डिसइंफेक्टेंट। देन हेलोजेनेटेड सॉल्वेंट्स हैं, जैसे इसमें इंपॉर्टेंट है क्लोरोफॉर्म है, यूज होती है। फिर मेटल्स हैं, क्रोमियम मेटल, लेड मेटल, मर्करी, सिल्वर। फिर नॉन हेलोजेनेटेड सॉल्वेंट्स हैं, एसीटोन यूज होता है काफी, आइसोप्रोपेनॉल यूज होता है। देन अदर डिसइंफेक्टेंट लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज होता है, परएस्टिक एसिड यूज होता है। देन ऑक्सीडाइजर्स लाइक ब्लीच, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। रिड्यूसर्स हैं लाइक सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। तो ये इस तरह के डिफरेंट वो हैं। इम्पैक्ट ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स ऑन हेल्थ, they can cause intoxication either by acute or chronic exposure and physical injuries like burns भी कर सकते हैं, acute chronic exposure कर सकते हैं, injuries to eyes कर सकते हैं, skin और mucous membrane of airways can occur by contact with inflammable, corrosive और reactive chemicals। ये एक आइडिया दिया गया है कि मदर को अगर कोई केमिकल इन्फेक्शन है, केमिकल है उसकी बॉडी में, वो मदर कैन पास एज मच एज 33% ऑफ हर केमिकल बॉडी बर्डन टू हर चाइल्ड, अपने बच्चे को दे सकती है वो अगर उसके अंदर है तो। ये देखो इसमें दूसरा है, 232 टॉक्सिक केमिकल्स वर फाउंड इन अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड फ्रॉम US न्यूबॉर्न से ये 232 टॉक्सिक केमिकल पैदा नजर आए। अब ये इन्होंने दिखाया कि ये कितनी डेथ हुई, पोल्यूशन से 4.9 मिलियन डेथ्स हुई, और HIV एड्स से 2 मिलियन डेथ हुई। पोल्यूशन देखो कितना इंपॉर्टेंट है,
कितनी डेथ्स हो जाती हैं। और ट्यूबरकुलोसिस से 1.5 मिलियन, और ट्रैफिक एक्सीडेंट से 1.3 मिलियन, और मलेरिया से 0.9 मिलियन। ये जस्ट कंपेयर किया कि पोल्यूशन का सबसे ज्यादा वो है। देन दिस मर्करी जो है, मर्करी साहब आपने देखा ही होगा कि मर्करी का बैन हो गया, मर्करी बंद होना शुरू हो गया। मर्करी इज फाउंड इन 3 मेजर फॉर्म्स इन द एनवायरनमेंट। 3 एनवायरनमेंट में 3 फॉर्म्स में, मेजर फॉर्म में पाया जाता है, एज मिथाइल मर्करी, एलिमेंटल और मेटालिक मर्करी, और कैन बी बाउंड टू अदर कंपाउंड। ये 3 तरह से। सोर्स क्या पहले यूज होते थे थर्मामीटर में, ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स, स्फिग्मोमेनोमीटर्स, डेंटल में यूज होता था, एमलगम में, ईसोफेगल डायलेटर्स, लेबोरेटरी केमिकल्स में यूज होता, बैटरीज में, फ्लोरेसेंट लैंप्स में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, प्रेशर गॉजेस। अब तो काफी हद तक इसको बैन करके बंद करने की कोशिश हो रही है, काफी हद तक बंद है। देन इसका इफेक्ट क्या होता है एनवायरनमेंट पे? एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है? मोस्ट ऑफ द मर्करी फाउंड इन द एनवायरनमेंट इज इनऑर्गेनिक, सिंस मर्करी इज नेवर ब्रोकन डाउन इनटू अनदर केमिकल एंड हार्मलेस फॉर्म। मर्करी जो है कभी ब्रोकन डाउन नहीं होती, एनवायरनमेंट में आ गई और ये हार्मलेस फॉर्म में नहीं जाती, सो उसी फॉर्म में रहती है, तो इसलिए ये बड़ी प्रॉब्लम है। मर्करी परमानेंटली एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट बाय चेंजिंग इट्स केमिकल फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट। यह परमानेंट रहेगी। फ्लशिंग आपने कर दिया, फ्लश कर दिया सीवर्स में, डंपिंग कर दिया म्यूनिसिपल वेस्ट में, बिन्स में, वो सारी होल एनवायरनमेंट को खराब कर देगी, पूरी कम्युनिटी को परेशानी है। 1 ग्राम ऑफ मर्करी कंटेमिनेट्स ए 20 एकड़ लेक। 20 एकड़ लेक को ये 1 ग्राम मर्करी कंटेमिनेट कर सकती है, विद एनफ मर्करी टू कॉज पॉइजनिंग ऑफ फिश। फिश को पॉइजन कर सकती है ये मर्करी। देन इफेक्ट ऑफ मर्करी ऑन हेल्थ क्या है? मिथाइल मर्करी हैज ए कैपेबिलिटी टू इंटरफेयर विद सेल डिवीजन। बॉडी का हमारा सेल डिवीजन को इंटरफेयर कर देती है, सेल डिवीजन बंद होना शुरू हो जाता है। इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर और प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। तो प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन आर मोस्ट वल्नरेबल टू इफेक्ट ऑफ मर्करी। मर्करी इज ए पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन ब्रेन को इफेक्ट करती है, एंड इवन एट वेरी लो लेवल्स ऑफ एक्सपोजर इट कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे ब्रेन वगैरह को परमानेंट डैमेज कर सकती है। एट हायर कंसंट्रेशन मर्करी कैन डैमेज वाइटल ऑर्गन्स, लंग्स, लीवर, किडनी को डैमेज कर सकती है। अब मैनेजमेंट क्या करेंगे? मर्करी का अगर स्पिल हो गया तो कैसे मैनेजमेंट करेंगे? मर्करी के स्पिल को मैनेजमेंट, गिर गया मर्करी आपसे, तो मैनेजमेंट कैसे करना है? मैनेजमेंट करने के लिए आपको पहले तो वही स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस लेनी है, ग्लव्स डालो, मास्क डालो, है ना, इनहेल ना हो जाए। फिर आप सारा विंडोज वगैरह खोल दो, हाँ, रूम्स के दरवाजे खोल दो, और फिर आप 2 पीस प्लास्टिक के लेके प्लास्टिक शीट से उठाओ उसको, और एक बोतल में डाल दो, एक बोतल में लेबलिंग करके कि मर्करी वेस्ट, उसमें डाल दो। छोटे टुकड़े जो रह जाए तो उसका ग्लास पिपेट या सिरिंज से आप ले लो। अगर फिर भी लगता है कुछ रह गया है तो फिर आप वहां पे जिंक पाउडर या सल्फर पाउडर डाल दो, ताकि वो उसके साथ मिक्स करके फिर आप उठा सकते हैं। बोतल को लेबल करो मर्करी वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट, और क्लोज करो कंटेनर को, और देन क्लीन द मर्करी स्पिल एरिया, जो एरिया है उसको सोडियम थायोसल्फेट से क्लीन करो। और ये तरीका है इसको मर्करी स्पिल को मैनेजमेंट करने का। देन लेड की बात करते हैं। सोर्सेस ऑफ हेल्थ केयर सेटिंग में क्या है लेड? मेजर सोर्स ऑफ लेड फ्रॉम हेल्थ केयर वेस्ट आर, डेंटल में यूज हो गया, है ना, एमलगमेशन में वेयर लेड फाइल्स आर यूज्ड, ट्रेडिशनल एक्सरे पैकेट्स, देन लेड एपरेंस होते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, एक्सरे डिपार्टमेंट में, लेड एसिड बैटरीज यूज होती हैं, लेड पेंट्स यूज होते हैं। इफेक्ट ऑफ लेड ऑन एनवायरनमेंट क्या है? Lead X-ray packets results in the contamination of soil and groundwater in landfill area after disposal. Lead X-ray packets जो होते हैं वो soil को contaminate कर देते हैं, ground water को contaminate कर देते हैं अगर landfill area में। And environmental pollution can occur when non-hazardous general waste containing lead from healthcare institutions incinerated or buried in open cranes. अगर आपने बरी कर दिया तो वो एनवायरनमेंट को खराब करता है। वाटर पोल्यूशन ड्यू टू इरोजन ऑफ लेड पाइप्स हैं वाटर सप्लाई के, उससे वाटर पोल्यूटेड हो सकता है इरोजन से। डिस्पोजल ऑफ लेड कंटेनिंग फार्मास्यूटिकल्स इन द सीवर में आपने डिस्पोज कर दिया।
तो वो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो सकता है। इफेक्ट क्या होते हैं जेड के? इफेक्ट हो सकते हैं, ब्लड को इफेक्ट कर सकता है, नर्वस सिस्टम को, इम्यून सिस्टम, किडनी को, हार्ट को। एक्सपोजर टू हाई अमाउंट्स ऑफ दैट कैन कॉज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्पटम्स आ सकते हैं, ब्रेन को डैमेज कर सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है। सो ये रिस्क जो बन सकते हैं इससे। अदर हैवी मेटल्स क्या है? एल्युमिनियम है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है, बेरियम है, बेरिलियम है, निकल है, थेलियम है, कैडमियम है, क्रोमियम है। फ्यूल गैसेस, इंसिनरेटर जो हम यूज करते हैं उसमें से भी कुछ गैसेस निकलती हैं जो एनवायरनमेंट को खराब करती हैं। जो सो टू रिलीज ऑल द अबव हैवी मेटल्स, उसमें सारे हैवी मेटल्स जो ऊपर लिखे हुए हैं ये सब आ जाते हैं गैसेस में। एंड डिसइंफेक्टेंट्स की बात करते हैं जो बड़े यूज होते हैं हॉस्पिटल्स में, बहुत यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट्स आर रूटीनली यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर क्लीनिंग पर्पसेस एंड these chemicals are very toxic and their exposure could lead to serious health issues. Commonly used disinfectant क्या है हॉस्पिटल में? फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटाराल्डिहाइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड बहुत ज्यादा यूज होता है और ग्लूटाराल्डिहाइड बहुत यूज होता है। फिनोल भी यूज होता है, फिनोलिक केमिकल्स, क्लोरहेक्सिडिन, सिट्रीमाइड, ये सब यूज होता है। सो फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? एज ए फॉर्मलिन यूज होता है, पैथोलॉजी के जितने स्पेसिमेंस होते हैं प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है, बॉडी को एम्बार्मिंग करने के लिए यूज होता है, डिसेक्शन की जो बॉडी होती है एनाटॉमी में। सो फिक्सेटिव के लिए यूज होता है, हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेंस को फिक्स करने के लिए। इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट क्या है? ये वेपराइज हो जाता है बड़ी इजीली और जो है एयर में पाया जाता है। एयर में होगा तो एनवायरनमेंट में होगा तो आपके सांस में आ जाएगा। हेल्थ पे इफेक्ट क्या है इसका? फॉलिंग इनहेलेशन टू लो कंसंट्रेशन कंजंक्टिवाइटिस हो सकती है इससे, सोर थ्रोट हो सकती है, कॉफिंग हो सकती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है। In the body, it quickly breaks down into chemicals which pass out of the body through urine. Urine से पास हो जाता है ये। Then glutaraldehyde क्या है? ये कलरलेस ऑयली लिक्विड है, मार्केट में साइडेक्स के नाम से यूज होता है। आपने कई बार हॉस्पिटल में सुना होगा, भाई साइडेक्स पड़ा है, साइडेक्स में लाओ, जो है ओटी में बहुत यूज होता है साइडेक्स। यूज है ग्लूटाराल्डिहाइड इन द हेल्थ केयर सेटिंग। कोल्ड स्टेरिलेंट कहते हैं, कोल्ड स्टेरिलेंट इसे कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन हो जाता है विदाउट राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज नहीं होता। टिश्यू फिक्सेटिव के तौर पे यूज होता है हिस्टोलॉजी, पैथोलॉजी में। एम्बार्मिंग के लिए यूज हो सकता है एनाटॉमी में। इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्राफ्ट्स एंड बायो प्रोसेसिस में हो सकता है। यूज टू डिसइंफेक्ट इक्विपमेंट जितने भी होते हैं ये ओटी वोटी के, डायलिसिस इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ब्रांकोस्कोप, एंडोस्कोप को डिसइंफेक्शन के लिए। यूज्ड इन ऑपरेशन थिएटर, आईसीयूज एंड वार्ड्स फॉर डिसइंफेक्टिंग पर्पसेस। Effect क्या है on the environment of glutaraldehyde? Affects health workers during the pouring of glutaraldehyde solution into a sink or toilet due to exposure to, बंदे ने लिया solution टॉयलेट में उसमें डाल दिया या सिंक में डाल दिया, उसके एक्सपोजर हो सकता है वेपर से, वेपर निकले, आपने इनहेल कर लिया। इफेक्ट का होगा उससे ग्लूटाराल्डिहाइड का हेल्थ पे? आईज को इरिटेट कर सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रॉब्लम कर सकता है इनहेलेशन से, और कंजंक्टिवा या स्किन पे आया तो आपका स्किन पे भी कोरोसिव इफेक्ट आ सकता है या कंजंक्टिवा पे। इधर ही रही थी, पूरे दिन उधर ही रही थी। मे कॉज परमानेंट इंजरी टू आईज, आईज को परमानेंट इंजरी का हेडेक, कफ एंड अस्थमा लाइक कंडीशन हो सकती है। एलर्जिक इन्फेक्शन, डर्मेटाइटिस, नेजल, ये सब इफेक्ट हो सकते हैं। टी-शर्ट पड़ी हुई सोडियम है। हाइपोक्लोराइड बहुत यूज होता है एचआईवी और एचबीवी के लिए। एचआईवी लैबोरेटरीज में सब जगह सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज होता है। Most widely used chemical disinfectant in healthcare settings and household due to disinfection efficacy and affordability, क्योंकि affordable भी है और इसकी efficacy बड़ी अच्छी है, बड़ा effective है। And sources क्या है? Disinfection, spill management के लिए, blood कहीं गिर गया आपका, उसके मैनेजमेंट के लिए भी ये यूज होता है डिसइंफेक्टेंट। बेड पेन्स में यूज होता है। और जो ऑटोक्लेव नहीं कर सकते जिनको, लाइक एंडोस्कोप और प्लास्टिक सिरिंजेस, उनको भी वो होता है। डिस्पोजल वेस्ट को डिस्पोज करने से पहले भी यूज हो जाता है। ये सारे सोडियम हाइपोक्लोराइड के यूजेस हैं। इफेक्ट क्या है इसका एनवायरनमेंट में? इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस कुछ नहीं है, लेकिन हेल्थ पे क्या है? ये कार्सिनोजेनिक भी नहीं है, म्यूटाजेनिक भी नहीं है, टेराटोजेनिक भी, अच्छी बात है। लेकिन आईज को इरिटेट करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इरिटेट करता है, और कंजंक्टिवा और स्किन में कोरोसिव एक्शन हो सकता है। हेडेक हो सकता है, कफ हो सकता है,
थ्रोट इरिटेशन हो सकता है, अस्थमा लाइक कंडीशन हो सकती है, इंजेक्शन हो गया तो नाजिया वॉमिटिंग हो सकता है। और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है मैनेजमेंट ऑफ हैजार्डस केमिकल वेस्ट के, कि मिनिमाइज करो इसका यूज, जो है मिनिमाइज करो, कम से कम केमिकल यूज करो। अगर यूज के बिना काम चलता है तो करो, अगर यूज करना ही है तो डिस्पोज प्रॉपर करो। तो मिनिमाइज ऑप्शंस क्या है? मिनिमाइज ऑप्शन ये है सब्स्टिट्यूटिंग हाई टॉक्सिक जो केमिकल है उसके बदले कोई ऐसा यूज करो जो लेस टॉक्सिक हो। एक तो ये है मिनिमम कंसंट्रेशन यूज करो उसकी जितनी चाहिए। इंश्योरिंग गुड इन्वेंटरी कंट्रोल, जस्ट इन टाइम परचेज, जब आपको चाहिए तभी परचेज करो। स्टोरेज एरिया उसका वेल डिफाइन करो। इंटीग्रेटिंग पेस्ट का मैनेजमेंट जरूर करो, पेस्ट मैनेजमेंट नहीं करोगे तो चूहे वूहे उसको लेके जाएंगे और केमिकल को कहीं और छोड़ देंगे, एनवायरनमेंट खराब करते रहेंगे। कीपिंग डिसइंफेक्टेंट ट्रेस कवर टू प्रिवेंट लॉस ऑफ, सारे जितने भी वो हैं उसकी डिसइंफेक्शन ट्रेस जो है उनको कवर रखो, अदरवाइज वो एवेपोरेट होके ये एनवायरनमेंट में आएगा। स्पिल प्रिवेंशन एंड क्लीन अप प्रोसीजर को डेवलप करो एंड रिकवरिंग सॉल्वेंट्स यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्पोजेबल सजेशंस क्या है? Hazardous chemical waste of different composition should be stored separately based on compatibility to avoid unwanted chemical reactions and explosion or to avoid fire hazards. जो भी hazardous material है उसको stored separately करो। और ये देखो ऐसे आपस में दो केमिकल ऐसे ना पड़े हो जो आपस में रिएक्ट करते हो और एक्सप्लोजन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको दूर दूर रखो। स्टोरेज एरिया शुड बी प्रोवाइडेड विद फायर सेफ्टी प्रोविजन, फायर सेफ्टी प्रोविजन होना चाहिए। कहीं मान लो कोई केमिकल ने फायर पकड़ दिया तो आपके फायर सेफ्टी का सिस्टम ही नहीं है, वो होना चाहिए। लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल वेस्ट शुड नॉट बी बरीड बिकॉज दे मे लीक फ्रॉम देयर कंटेनर्स, बरी नहीं करना चाहिए इनको, नहीं तो वो कंटेनर से लीक हो गया तो एनवायरनमेंट को खराब करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल शुड नॉट बी इनकैप्सुलेटेड एज दे आर corrosive टू कंक्रीट एंड समटाइम्स प्रोड्यूस फ्लेमेबल गैसेस, कभी कभी गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये नहीं है कि आपने इनकैप्सुलेट कर दिया, कंक्रीट का एक पत्थर का वो बना दिया आसपास और उसमें डाल दिया। अनयूज्ड हैजार्डस केमिकल कैन बी रिटर्न टू द ओरिजिनल, अगर अनयूज्ड है कोई केमिकल तो जो सप्लायर ने आपको सप्लाई किया उसको वापस करो। ऑल हैजार्डस वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के हिसाब से सारे वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ। द डिस्पोजल ऑफ फोटोकेमिकल्स क्या है? फोटोकेमिकल शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली, सेपरेट कलेक्ट करो। First, recovery of silver from photo processing waste water should be done using cation exchange, electrolyte recovery or filtration by authorized recycler for recovery of silver, recover करो उसमें से। And spent solution after neutralizing should be stored for a minimum of 1 day. आपने spent solution जो किया है आपने न्यूट्रलाइज करो उसको पहले और 1 दिन तक रखो और फिर उसको भेजो ट्रीटमेंट के लिए ETP। Thank you very much. I hope it will be useful. And if you have any query, we can talk. Anything? Hello, sir. Hello. Very informative, sir. Okay. सर एक डाउट था, जो हाँ जी। हेल्थ केयर फैसिलिटी के अलावा अगर हम घर पे भी फास्ट एड कर रहे हैं, बैंडेज वगैरह, वो भी सब हाँ। हेल्थ केयर, वो भी बायोमेडिकल वेस्ट है। अगर आप घर पे भी कर रहे हैं जी सर, वो भी आपको बायोमेडिकल वेस्ट की तरह यूज करना चाहिए। और कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, जो इंजरी वगैरह होता है, वो तो डेफिनेटली प्रिकॉशन लेना चाहिए। आपको एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आप किसी एक्सीडेंट विक्टिम का मदद कर रहे हैं तो आइडियली ग्लव्स वगैरह होने चाहिए। ग्लव्स नहीं होंगे तो उसका ब्लड टच करेगा और मान लो उसको कोई बीमारी है, HIV है या वो है और आपको कट लग गया तो आपको हो सकता है, वो ग्लव्स वगैरह होना चाहिए। अगर आप किसी बंदे की मदद कर रहे हैं जो TB का पेशेंट है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो आपको मास्क लगाना चाहिए। जैसे आपने देखा कोरोना के टाइम में हर आदमी मास्क लगा के बात करता था ना, क्योंकि हर आदमी कोरोना पे था
तो वो वही इनहेलेशन के लिए कोई भी चीज मैं जो नहीं आपको लगता है कि सांस से हो जाएगी, उसमें Yes, sir. आपको मास्क का प्रोविजन जरूर होना चाहिए जो है। दूसरी ले लो Yes, अंदर sir. से पजामा तो है और सर टी-शर्ट एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का और एक बार बता देंगे क्या? देखो, क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का ये होता है कि जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं अंदर की तो चांसेस होते हैं, प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक लेते हैं कि वो चला आप अंदर बॉडी में एंटीबायोटिक का यूज क्यों कहते हैं कम करिए, सब दुनिया कहती है एंटीबायोटिक कम यूज करिए, जी क्योंकि सर। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया का क्या काम है, वो कोई ना कोई तरीका निकाल देता है कि वो एंटीबायोटिक उस पर असर नहीं करे। उसके कई तरीके हैं, क्योंकि वो बचना चाहता है एंटीबायोटिक से। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी आपकी बॉडी में है, आपने एंटीबायोटिक दिया, वो एंटीबायोटिक तो असर ही नहीं कर रहा, वो तो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया चल रहा है, नहीं हो रहा। में अब आएगा वो वाला बैक्टीरिया वो शेड करे जा रहा है, वो शेड कर रहा है तो दूसरे बंदे को इन्फेक्शन हो गया उस बैक्टीरिया से, तो वो भी फैल गया। क्यों कहते हैं कि हॉस्पिटल में चांसेस ज्यादा होते हैं ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के, Yes, घर sir. घर के अलावा, घर में कम होते हैं, टी-शर्ट लिया Yes, sir. कम्युनिटी में कम होते हैं, हॉस्पिटल में ज्यादा होते हैं। हॉस्पिटल में सारे पेशेंट एंटीबायोटिक पे चल रहे हैं, अभी तो बड़े सारे पेशेंट्स ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया लेके घूम रहे हैं, तो वो वहां से कोई भी कांटेक्ट में आएगा उसको हो जाएगा। Yes, sir. वो नाम किसने लिखा वहाँ पे Okay. Thank you, sir. चलो ओके, एनीथिंग एल्स, तो ये तेरी राइटिंग है, मार्कर से लिखा है तूने एनीवन, यार पर ये क्यों मैं जल्दीबाजी में यहाँ रख देती हूँ, मैंने जल्दीबाजी में मार्कर रख दिया, तूने यहाँ लिख एनीवन एनी क्वेरी? If no query, then we can stop here. Anyone? Pawan Mishra or someone? No? Okay then. Thank you very much. Thank you very much. Thank I'm you, sir. closing. Thank you. Okay, thank you.